بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آخر طویل سکوت کے بعد نظام شاہ لب کشا ہوئے۔ میری بیٹی کی طرح کوئی اور کیا مانگے گا؟ پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ نگار خانم نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ میں کیا، میری دعائیں کیا اور میرے پھیلے ہوئے ہاتھ کیا؟ نظام شاہ نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر بھی میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اگر میری کسی دعا کا اثر اس دنیا میں ظاہر نہ ہو تو نظام شاہ کو معاف کر دینا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک گناہگار انسان ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر تک نگار خانم کو تسلیاں دیتے رہے اور پھر اپنے روزانہ کے معاملات کے مطابق رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر سبکتگین نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میں تو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہا ہوں، مگر آج مجھے ان دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے۔ جواب میں نظام شاہ مسکرائے۔ ایک اسلامی مملکت کے امیر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عادل و منصف حکمران کی دعائیں کسی درویش کی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں شیخ کی باتوں سے انحراف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امیر سبکتگین بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہا تھا۔ کسی عادل و منصف فرما روا کی دعاؤں میں یقیناً تاثیر ہوگی، مگر میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ امیر غزنی کی یہ عقیدت اور نیاز مندی دیکھ کر نظام شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ امیر، اللہ تمہیں تمہارے اس حسن زن کی جزا دے کہ جاہ و حشم کے مالک ہوتے ہوئے بھی ایک فقیر بے سر و سامان کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ تم تو میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کے زیر سایہ ہو، پھر میری دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ امیر سبکتگین نظام شاہ کے سامنے دوزانوں بیٹھا تھا۔ مضطرب ہو کر اس نے نظام شاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شیخ، میں نے اپنے دور غلامی میں سید امیر علی شاہ کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے، مگر عہد آزادی میں ان کی نشانی کو بار بار دیکھتا ہوں۔ آپ سید کا ہی ایک حوالہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سید میرے رہبر ہیں۔ پیر و مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ کے جسم پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد حالت ذرا سنبھلی تو کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، ہرگز نہیں امیر، ہرگز نہیں۔ کہاں وہ سید عالی نسب اور کہاں میں حقیر ترین نظام شاہ۔ آپ کو آسمان سے کیا نسبت؟ پھر سید ہی کے واسطے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، تمہارے لیے دن رات دعائیں ہی تو کرتا رہتا ہوں، اور مجھے دنیا میں کیا کام ہے؟ نظام شاہ نے امیر سبکتگین کے ہاتھوں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا اور اس کی گرفت مضبوط کر دی۔ اللہ کے بھروسے پر بے خوف ہو کر دشمنوں سے جنگ کرو۔ مجھ بندہ عاجز کے ہاتھ بھی اس وقت تک دعا کے لیے اٹھے رہیں گے جب تک بت پرستوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھک نہیں جائیں گی۔ مگر یاد رکھنا کہ جب کوئی کمزور شخص یا عورتیں یا بوڑھے یا بچے تم سے امان مانگے تو ان کے سروں پر اپنے سایہ کرم کو دراز کر دینا، اور جب تم دشمنوں پر عملاً غلبہ حاصل کر لو تو عام رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تاکہ منکرین خدا بھی ایک مسلمان فاتح کا روشن و تابناک چہرہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ کے سپاہی اپنے نفس کی خاطر جنگ نہیں کرتے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کی بارگاہ جلال سے اس طرح اٹھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عزم، حوصلے اور جوش کا ایک ایسا سمندر موجود تھا۔ دوسرے دن غزنی کے لشکر کو محاذ جنگ کی طرف روانہ ہونا تھا، مگر روانگی سے پہلے ولی عہد سلطنت محمود نظام شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد پہنچا۔ نظام شاہ نے اس بار بھی بڑے والہانہ انداز میں کھڑے ہو کر محمود کا استقبال کیا۔ بعض اراکین حکومت جو محمود کے ہمراہ تھے، انہوں نے اس منظر کو بڑی حیرت سے دیکھا اور یہ بات صاف طور پر محسوس کر لی کہ نظام شاہ امیر سبکتگین کے احترام میں بھی کبھی کھڑے نہیں ہوتے، مگر محمود کو دیکھ کر نہ صرف نظام شاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے بلکہ وہ اپنی جگہ پر استادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی نظام شاہ نے یہی کیا تھا۔ پہلے محمود کو گلے لگایا اور پھر کئی بار اس کی پیشانی کو بوسے دیے۔ شیخ، آپ کا یہ غلام کچھ دیر بعد اپنی زندگی کے پہلے معرکے میں شرکت کرنے کے لیے ایک طویل اور دشوار سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ آپ ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے نام لیواؤں کی مشکلیں آسان کر دے۔ محمود کا لہجہ مجاہدانہ تھا، مگر گردن جھکی ہوئی تھی۔ غلام نہیں، میرا بت شکن، نظام شاہ نے اپنے مخصوص دل نواز تبسم کے ساتھ کہا۔
तुम एक सफर की बात करते हो? तुम्हारी तो सारी जिंदगी ही सफर में गुजरेगी और हर सफर तुम्हारे लिए नई राहत का पैगाम लेकर आएगा। तुम हर कदम पर अल्लाह की नुसरत को चमकते हुए सूरज की तरह देखोगे और ताइद गैबी की ये रोशनी तुम्हें शिकस्त और नाकामी के अंधेरों में गर्क नहीं होने देगी। ये कहकर निज़ाम शाह ने महमूद के सर पर कई बार हाथ फेरा। फिर वली अहद सल्तनत ने रुखसत की इजाज़त चाही तो निज़ाम शाह ने फरमाया, हम खुद अपने बुत शिकन को मुहाज़ जंग की तरफ रवाना करेंगे। इसके बाद निज़ाम शाह मस्जिद से बाहर निकल आए और महमूद के साथ उसके घोड़े पर सवार होकर गजनी की सरहद तक पहुंचे। गजनी के तमाम उमरा और अक्सर बाशिंदे अपने मुजाहिदीन को रुखसत करने के लिए जमा हुए थे। सुबख्तगीन को वली अहद सल्तनत का इंतजार था। फिर जब महमूद का घोड़ा इस तरह नमूदार हुआ कि निज़ाम शाह भी उस पर सवार थे तो सुबख्तगीन शदीद हैरत में डूब गया। निज़ाम शाह घोड़े से नीचे उतरे। महमूद भी एहतरामन जमीन पर आना चाहता था, मगर निज़ाम शाह ने बाआवाज़ बुलंद कहा, तुम घोड़े की पुष्ट पर बैठे रहो, एक मुजाहिद का यही मकाम है। तमाम लोग हैरत ज़दा थे। फिर देखने वालों ने एक और हैरतनाक मंजर देखा। निज़ाम शाह ने महमूद के घोड़े की लगाम पकड़ी और कुछ दूर तक आगे बढ़ते रहे। महमूद बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और सुबख्तगीन फरते हैरत से दम बखुद होकर रह गया था। किसी में ताबे गोयाई ना थी कि निज़ाम शाह के सामने जुबान खोलता। तमाम शाह सवार अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आए थे। बस एक महमूद था जो निज़ाम शाह के हुक्म के ज़ेरे असर घोड़े पर सवार था, मगर इस तरह कि वो बार बार पहलू बदल रहा था। कुछ दूर चलकर निज़ाम शाह रुक गए। फिर बाआवाज़ बुलंद दुआ फरमाई, ए बेपनाह रहम वाले, अपनी राह के इन नातमाम मुसाफिरों को इस्तकामत बख्श देना कि तेरे करम के बगैर ये खसो खाशाक से भी ज्यादा हकीर हैं। फिर सुबख्तगीन से मुखातिब होकर कहा, अमीर, अल्लाह का नाम लो और आगे कदम बढ़ाओ। निज़ाम शाह उस वक्त तक मुजाहिदीन की कतारों को खड़े देखते रहे जब तक एक एक सिपाही नजरों से ओझल नहीं हो गया। अमीर सुबख्तगीन का लश्कर बरक रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस सिपह सलार बलराम सिंह के उस मंसूबे को नाकाम बनाना चाहता था कि राजा जयपाल की फौज अपनी ममलकत की हुदूद से निकलकर गजनी के कुर्ब जवार में दाखिल हो जाए। बिलाखिर बलराम सिंह की जंगी हिकमत अमली नाकाम हो गई और अमीर सुबख्तगीन का लश्कर मुल्तान के करीब पहुंच गया। बलराम सिंह को सुबख्तगीन की मनसूबाबंदी पर हैरत थी। उसे दिल ही दिल में ये बात तस्लीम करना पड़ी कि अमीर गजनी एक बहुत बाखबर इंसान है। वो अपने दुश्मन को उसकी मर्जी के बगैर जंग करने की मोहलत नहीं देता। ये बहुत अच्छा हुआ बलराम सिंह, अमीर सुबख्तगीन खुद चलकर मौत के करीब पहुंच गया है। राजा जयपाल ने इंतहाई मगरूर लहजे में अपने सिपह सालार को मुखातिब करते हुए कहा, देवता उसे जिल्लत नाकामी के नर्क यानी दोज़ख तक ले आए हैं। अब सुबख्तगीन का एक सिपाही भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। सम्राट, ऐसा ही होगा। बलराम सिंह ने मुख्तसर जवाब देकर जयपाल को टालने की कोशिश की और अपने फौजों को तरतीब देने लगा। फिर कुछ देर बाद मुल्तान की सरहदों पर एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। उस वक्त महमूद की उम्र 16-17 साल होगी। कमसिनी के बावजूद अमीर सुबख्तगीन ने उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी थी। अगरचे दरपर्दा तमाम जंगी अमूर की निगरानी कर रहा था, लेकिन ज़ाहरी एतबार से महमूद ही इस्लामी लश्कर का सालार था। सुबख्तगीन की ख्वाहिश थी कि महमूद अपने दिमाग से फैसले करे और आज़ादाना तौर पर राजा जयपाल से जंग लड़े। फिर अगर इससे कोई लफ्जिश हो जाए तो सुबख्तगीन मुनासिब हिदायत देकर उसकी इस्लाह कर दे। दरअसल ये उस बच्चे का एक इम्तिहान था जिसे कुछ दिन तक छोटे दरियाओं में तैराकी की तरबियत देकर समंदर में उतार दिया गया था। महमूद बड़ी बेजिगरी से लड़ा। कई बार उसने बलराम सिंह के लश्कर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तकरीबन 8 रोज तक मुसलसल किस्मत आजमाई होती रही, मगर अभी तक जंग का कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका था। इस दौरान एक बार यूं भी हुआ कि राजपूत सिपाही आगे बढ़ते चले गए और बलराम सिंह को अपनी फतह करीब तर नजर आने लगी, मगर महमूद ने अपने फौजियों को उनके अहद याद दिलाए और फिर से पसपाई की तरफ जाता हुआ लश्कर अचानक पलट पड़ा और फिर देखते ही देखते मुजाहिदीन इस्लाम एक कोहे गरां बन गए। यहाँ तक कि बलराम सिंह के सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा। फिर उसी रात अरमगाना राजा जयपाल की इजाजत लेकर सिपह सालार बलराम सिंह से मिली। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? बलराम सिंह ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। अरमगाना ने जयपाल की मर्जी से इंतहाई शोख और चमकीला लिबास पहना था। महाराज, ये महाज जंग है और इसकी फिजा में मेरे जिस्म पर यह लिबास सेब नहीं देता। अरमगाना ने अपने मसनूई जज्बों की नुमाइश करते हुए कहा। जंग अपनी जगह है और तुम्हारा हुस्न अपनी जगह। राजा जयपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था।
हम एक हकीकत पसंद हुक्मरान हैं, मैदान जंग में दुश्मनों के सर काटते हैं और खलवत में अपना सर महबूब के कदमों में रख देते हैं। अपनी इस हुस्न परस्ती के जज्बे से मजबूर होकर राजा जयपाल अरमगाना को महाज जंग पर लेकर आया था और उसे हुक्म दिया था कि वो हर वक्त बेहतरीन मलबूसात से आरास्ता रहे। जब बलराम सिंह ने अरमगाना की आरइश के नए अंदाज देखे तो उसकी आंखें खीरा हो गईं और लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? अरमगाना ने एक खास अदाए दिल नवाजी के साथ कहा, जब मैं अपने दुश्मन के मुकाबिल होता हूँ तो किसी औरत के वजूद को बर्दाश्त नहीं करता। बलराम सिंह के लहजे से किसी कदर नागवारी का इजहार हो रहा था। एक मर्द एक वक्त में एक ही महाज पर जंग कर सकता है। मैं दुश्मन से लड़ूं या अपने नफ्स के खिलाफ जंग करूं? मैं तुम्हें तुम्हारा अहद याद दिलाने आई हूं बलराम सिंह। अरमगाना के होंठों पर बड़ी तौबा शिकन मुस्कुराहट थी। मुझे सब याद है, बलराम सिंह ने बेजारी से कहा। फिर इतनी देर क्यों हो रही है? अरमगाना बड़ी अय्यारी से राजपूत सिपह सलार के जज्बात को उभार रही थी। सुबक्तगीन और उसका बेटा खुद चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी गर्दनें तुम्हारी शमशीर पर रखती हैं। अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? तुम उनके सर काटकर मेरे कदमों में क्यों नहीं रख देते? ये मैदान जंग है अरमगाना। बलराम सिंह बुरी तरह झुंझला गया था। कैफो निशात की कोई रंगीन महफिल नहीं कि एक रकासा को जिस तरह चाहा नाचने पर मजबूर कर दिया। कुछ भी हो बलराम सिंह, मैं जा रही हूँ। अरमगाना ने बड़े गुरूर से अपनी खूबसूरत आंखों को गर्दिश देते हुए कहा, मैं तुम्हें बस एक रात की मोहलत देती हूँ। अगर कल तक तुमने सुबक्तगीन के फौजियों पर गलबा हासिल ना किया तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई माहिदा नहीं। ये कहकर अरमगाना राजपूत सिपह सलार के खैमे से निकल गई। बलराम सिंह रात भर एक अजीब सी आग में सुलगता रहा और फिर दूसरे दिन बलराम सिंह अपने मोतबर सिपाहियों का एक दस्ता लेकर मैदान जंग में दाखिल हुआ और दीवाना वार जंग करता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां महमूद घोड़े की पुष्ट पर बैठा अपने लश्कर को दुश्मन से लड़ा रहा था। इसी कश्मकश में बलराम सिंह के तमाम साथी जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े थे या फिर हलाक हो चुके थे। अब राजपूत सिपह सलार तन्हा था और हर तरफ से हरीफ सिपाहियों के दरमियान घिर चुका था। जब महमूद तक पहुंचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा तो बलराम सिंह ने चीख कर कहा, मैं राजा जयपाल का सिपह सलार हूँ, मुझे कमतर दर्जे का कोई सिपाही हाथ न लगाए। अगर तुम बहादुरों की नस्ल हो तो अपने सरदार महमूद तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मैं उससे दस्त बदस्त जंग करना चाहता हूँ। इससे पहले कि सुबक्तगीन के सिपाही बलराम सिंह पर टूट पड़ते और उसका काम तमाम कर देते, महमूद ने राजपूत सिपह सलार की आवाज सुन ली थी। गजनी के वलीअहद सल्तनत ने बुलंद आवाज में अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, खबरदार, हमारे किसी सिपाही की तलवार इसके बदन को छूने की कोशिश न करे कि हम खुद इससे तन्हा मुकाबला कर लेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम की उठी हुई शमशीरें हवा में मुअल्लक होकर रह गईं। उन्होंने बड़ी हैरत से अपने सरदार महमूद का हुक्म सुना था और दिल ही दिल में पेचो तौब खा रहे थे। नायब सिपह सलार हसाम तुर्क, जो कि एक उम्र रसीदा और तजर्बाकार शख्स था, घबरा कर बोला, साहबजादे, ये आप क्या कर रहे हैं? निर्गे में आए हुए दुश्मन को फरार का मौका देना चाहते हैं? गुस्ताखी माफ, आपका यह हुक्म आदाब जंग के खिलाफ है। पता नहीं ये कौन शख्स है जो इतना बड़ा झूठ बोलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। खुदा के लिए अपने जज्बात पर काबू रखें। गुस्सा और इश्ताल वो मुहलक हथियार हैं जो एक सिपाही को अंदर से जख्मी कर देते हैं और इंसान जीती हुई जंग हार जाता है। मुझे तो इसमें राजा जयपाल की कोई चाल नजर आती है। कुछ भी हो हसाम, महमूद ने बेनियाजाना कहा, उसने हमारी पूरी कौम की गैरत पर तानाजनी की है, हम उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। और फिर महमूद के हुक्म पर उसके सिपाही दूर हट गए। बलराम सिंह शदीद आलम गजब में तलवार लहराता हुआ महमूद की तरफ बढ़ा। महमूद ने अपने दाएं बाएं खड़े हुए नायब सिपह सलार हसाम तुर्क और दूसरे फौजी अहदेदारों की तरफ देखा। ये खुला इशारा था कि तमाम लोग वलीअहद सल्तनत के करीब से हट जाएं और कोई शख्स इस इनफरादी जंग में मुदाखलत न करे। हसाम तुर्क के चेहरे से शदीद नागवारी के आसार जाहिर हो रहे थे, मगर वो महमूद के हुक्म के आगे मजबूर था। बलराम सिंह अपनी शमशीर को फिजा में गर्दिश देता हुआ तेजी से महमूद पर झपटा। वलीअहद गजनी ने अपने घोड़े को बाएं तरफ हटाया। बलराम सिंह अपने जोर में चंद कदम आगे निकल गया, फिर फौरन ही बरक रफ्तारी के साथ पलटा। दोनों जांबाजों की तलवारें टकराईं। अजीब सी झनकार पैदा हुई। महमूद गजनवी और बलराम सिंह की दू बदू लड़ाई में फतह किसकी हुई और मौत किसका मुकद्दर बनी, ये सब जानने के लिए दास्तान का अगला सनसनीखेज हिस्सा जरूर मुलाहिजा फरमाइए।